So we are going to discuss the next gland, that is the adrenal gland. How the adrenal gland we will discuss today. And this gland is very important for because the gland release a number of hormones responsible for the hormones of adrenal gland play a very important role in our body, and due to absence of these hormones a number of problems created. So in this way we can say that this gland is very important for our body, and it is also important related to our syllabus, because in our examination the number of questions asked related to this gland. So first of all, let us know about the location of adrenal gland. Location. So location of adrenal gland or adrenal gland situated above each kidney. जैसे कि हमारे बॉडी में वन पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है, लेफ्ट एंड राइट. सो दोनों ही किडनी पर एक एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड. तो अगर हम किडनी का डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा. At the tip of kidney, at the anterior of kidney, a cap-like structure present, and this cap-like structure is known as the adrenal gland. This is the kidney. So, a pair of kidney present as our excretory organ, and at the anterior part of each kidney there is a gland, and that gland is known as adrenal gland. उसी को हम बोलते हैं adrenal gland. So, location is at the top of each kidney. It means they are found in pair. There are a pair of adrenal gland found in our body. And the adrenal gland consists of two main regions. In their internal structure, if we observe the internal structure of the adrenal gland, we can find there are three structures. There are two regions in the structure of adrenal gland. If we make the section or cut the section of adrenal gland, there are two kinds of tissue placed in different regions. The one region is the outer region or peripheral region. In peripheral region, the tissue present in the adrenal gland, they are known as cortex, or the region of the adrenal gland made up of type of tissue present at the peripheral region. बाहर की तरफ जो प्रेजेंटेड है टिश्यू की लेयर, उसको हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं, और मिडिल सेंटर रीजन में जो पार्ट्स पाए जाते हैं, टिश्यू के लेयर पाए जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के, उसको हम बोलते हैं मेडुला. And maximum part of the adrenal gland it is made up of cortex region, and less part is made up of medulla. Medulla का पार्ट जो है छोटा होता है, cortex region बड़ा होता है. So we will discuss the hormones, the secretion of both the region. So first of all, let us discuss about the adrenal cortex, then we will discuss the adrenal medulla. So there are two regions, and we will discuss the secretion from these two regions. So secretion. So secretion takes place in the form of hormones. Secretion of hormones. So we will discuss the hormones released from different region. From the medulla region, the different hormone, then the cortex region release. कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में जो है अलग अलग तरीके के हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं. तो हम दोनों ही पार्ट्स के हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनका फंक्शन जानेंगे. तो सबसे पहले कॉर्टेक्स रीजन की बात करते हैं. इस हार्मोन्स ऑफ कॉर्टेक्स रीजन. So in cortex region
cortex region can again divided into three categories. There are three regions of cortex region is divided into three parts: outer, middle, and inner. So outer region, middle region, and inner region, these are differentiated region of cortex, and these three regions individually responsible for synthesize and secrete its own hormone or secretion. So outer region of the cortex is known as zona glomerulosa. Outer region of cortex is known as zona glomerulosa. The middle region is known as the zona fasciculata, and the inner region of the cortex is known as zona reticularis. zona reticularis. ये तीनों रीजन जो है इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग हार्मोन्स के लिए टू सेक्रीट, सिंथेसाइज एंड सेक्रीट. अलग अलग हार्मोन ये सेक्रीट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं. तो बात करते हैं पहले जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन की. तो जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन जो होता है वो रिलीज करता है आपका ग्रुप ऑफ हार्मोन इट इज नोन एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. स्पेशली एक चीज और आपको बता दें कि जो कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन्स निकलते हैं दे आर टुगेदर नोन एज कॉर्टिकॉइड्स. कॉर्टिकॉइड्स. Hormones released from a number of hormones released from the cortex region of the adrenal gland, they are known as corticoids. So corticoids में आपको three types के corticoids मिलेंगे. तो पहला जो outer region से corticoids रिलीज होते हैं they are known as mineralocorticoids, जो कि जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन होता है. So mineralocorticoids यहाँ पे मेन में ही जो है एक ऐड है minerals. It means they are responsible, these hormones are responsible for the मेंटेनेंस ऑफ मिनरल्स दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. मिनरल्स जो है हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं. मीन्स ये जो आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में आयनिक बैलेंस को बनाए रखते हैं. मिनरलोकॉर्टिकॉइड. तो वन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इज द एल्डोस्टेरोन. Aldosterone is one of the mineralocorticoids which is released from the outer region of cortex which is known as zona glomerulosa. अब आगे बात करते हैं. तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? ये जो है स्पेशली हमारे बॉडी में जब किडनी में क्या होता है, जब रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता है वहाँ पे सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एंड पोटेशियम आयन के को ब्लड से जो है सेक्रीट करने में हेल्प करता है. इससे क्या होता है कि सोडियम आयन का अमाउंट हमारी बॉडी में बना रहता है. साल्ट के जो साल्ट होते हैं बॉडी में उसको ये मेंटेन करने का काम करता है. वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी ये इंक्रीज करता है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दैट इज एल्डोस्टेरोन. मींस ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन एज वेल एज सोडियम आयन रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करता है. इसके अलावा पोटेशियम आयन को जो है सेक्रीट करता है इनटू द यूरिन. तो इस तरह से हमारी बॉडी में आयंस का बैलेंस, वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहता है. आयंस की कमी, साल्ट की कमी नहीं होती है, वाटर की कमी नहीं होती है. जैसे आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है डिहाइड्रेशन की वजह से जब वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय ORS जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है, ORS दिया जाता है. तो ORS किस में दिया जाता है? पानी में दिया जाता है. तो उसमें स्पेशली कुछ और चीज़ नहीं होता है. ORS में क्या होता है? साल्ट होता है. तो साल्ट और वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी को रिहाइड्रेट रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए. बॉडी में वाटर की कमी ना हो तो इसके लिए साल्ट और वाटर की जरूरत होती है. और साल्ट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कौन कराता है? एल्डोस्टेरोन कराता है, क्योंकि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड. और नेक्स्ट पार्ट जो है मिडिल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स रीजन. तो मिडिल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स रीजन जिसको हम जोना फैसिकुलेटा टर्म देते हैं. तो ये जोना फैसिकुलेटा टर्म जो होता है ये आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है टू सेक्रीट हार्मोन और काइंड्स ऑफ हार्मोन व्हिच इज नोन एज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. तो जैसा कि आपको बताया गया कि कॉर्टेक्स रीजन से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं. तो यहाँ पे जो फैसिकुलेटा रीजन से हार्मोन निकलता है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट ग्लूको टर्न एट
hormone, the glucocorticoid hormone, it is responsible for the maintenance of glucose level in our body. Glucocorticoids, and one of the glucocorticoids which are found in our body is known as cortisol. Cortisol is a type of glucocorticoids, and it is responsible for the maintenance of glucose, protein as well as fat. हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स के अमाउंट को बनाए रखने का काम कौन करता है? कॉर्टिसोल करते हैं। मीन्स ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं बॉडी में, उसके अलावा जो है वाटर के अमाउंट को ही मेंटेन करते हैं। एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, ये हार्मोन जब एबनॉर्मल वे में रिलीज होता है कॉर्टिसोल, सो देयर इज अ डिजीज कॉज्ड इन आवर बॉडी एंड दैट डिजीज इज नोन एज द एडिशन डिजीज। Addison disease is caused in our body due to the deficiency of corticoids or cortisol. So Addison term it is given on the basis of the person who discovered this disease, and Addison was also known as the father of endocrinology. Endocrine system का स्टडी को हम बोलते हैं endocrinology, and the father of endocrinology known as Addison. ओके, सो एडिशन डिजीज होता है, इसमें स्पेशली होता क्या है, इसमें वाटर की डिफिशिएंसी होती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज होता है, और उसके अलावा जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम रहता है, वीकनेस फील होता है, और लास्टली जो स्किन का कलर होता है एडिशन डिजीज में वो चेंज हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर ऑफ स्किन दिखाई देने लगता है, स्किन का कलर कांसे के जैसा दिखाई देने लगता है। सो दिस इज अबाउट द मिडिल part of cortex region which release glucocorticoids, and one of the glucocorticoid is cortisol. Next, the inner region of the cortex is known as zona reticularis, and zona reticularis is responsible for the secretion of a group of hormone. It is known as gonadocorticoids. ये जो है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको, गोनेड टर्म जुड़ा हुआ है। सो गोनेड जो टर्म है इट इज स्पेशली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारी बॉडी का ह्यूमन बीइंग में जो गोनेड्स होते हैं, मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरीज होती है। तो गोनेड्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं, उन्हीं हार्मोन्स का कुछ अमाउंट जो है ये इनर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स रीजन से भी निकलता है, तो जिसको हम जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसलिए इनको हम गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये गोनाइड्स वाले हार्मोन होते हैं, स्पेशली ये टेस्टिस और ओवरी से रिलीज होते हैं। बट बिफोर प्यूबर्टी ये जो गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये भी स्मॉल अमाउंट ऑफ गोनाडल हार्मोन रिलीज करते हैं। तो गोनाडल हार्मोन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा जब टेस्टिस और ओवरी बताया जाएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको बता दें कि टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है मेल में, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका टेस्टोस्टेरोन और ये आपका होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन आपका जो है मेल में रिलीज होता है, मेल में टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज होता है ओवरी से। मीन्स मेल कैरेक्टर के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल कैरेक्टर के लिए एस्ट्रोजन रिलीज होता है। मीन्स ये जो दोनों हार्मोन है ये गोनाइड से तो रिलीज होते ही है सफिशिएंट अमाउंट में आफ्टर द प्यूबर्टी और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बट बिफोर प्यूबर्टी और थ्रू आउट द लाइफ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आल्सो रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से भी ये जो है हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ not primary, these are known as secondary character of the male sex organ as well as female sex organ. मेलनेस और फीमेलनेस के लिए जो है सेकेंडरी कैरेक्टर जो अपीयरेंस होता है वो इन्हीं हार्मोन से होता है। सेकेंडरी कैरेक्टर में जैसे आपका आता है फेशियल हेयर हो गया मेल के केस में, एक्सियल हेयर हो गया जो आर्म्स के अंडर आर्म्स हेयर रिलीज निकलते हैं, प्यूबिक हेयर हो गया जो जेनाइटल रीजन में, तो सभी के रिस्पॉन्सिबल जो है ये हार्मोन्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये थे द पार्ट्स ऑफ कॉर्टेक्स रीजन और रिलेटेड टू द हार्मोन, जो इससे रिलेटेड हार्मोन्स है उसके बारे में आपको बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड।
The next part of adrenal gland is known as medulla region. So the first is the hormones of cortex region, and now we are going to discuss about the hormones of medulla region. And the hormones of medulla region, they are found secreted from the medulla part, which is present centrally in the adrenal gland. Adrenal gland के central part में जो region होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Adrenal medulla. तो medulla region से भी कुछ hormones रिलीज होते हैं, and the group of hormones released from the medulla region, they are known as catecholamine. The hormones released from this region, they are known as catecholamine. जैसे कि यहाँ पे आपको आप लोग देखते हैं कि हार्मोन्स ऑफ कॉर्टेक्स रीजन को कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं, वैसे ही हार्मोन्स ऑफ मेडुला रीजन को बोलते हैं कैटेकोलामाइन. ओके, तो बात करते हैं कौन कौन से कैटेकोलामाइंस जो है मेडुला रीजन से रिलीज होते हैं. सो मेडुला रीजन से जो है ये दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एक को बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, and the second is adrenaline or epinephrine. Adrenaline or epinephrine, and the second is known as noradrenaline or norepinephrine. These are the two types of catecholamine released from, synthesized and released from the medulla region of the adrenal gland. Adrenal gland के medulla region से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इन दोनों हार्मोन्स को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन. ये दोनों जो है फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोले जाते हैं. फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों बोलते हैं इन दोनों को? ये हार्मोन्स जो है 3F हार्मोन बोले जाते हैं. 3F जो होते हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट. तो फाइट मतलब लड़ाई करना. जब बॉडी जो है कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिससे का समय बॉडी प्रिपेयर होता है लड़ाई के लिए, तो उस समय ये हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं. फ्लाइट, अगर कोई ऐसा चीज़ डरावना चीज़ आप देख गए तो वहाँ से आप भागना चाहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट मतलब भागने के लिए भी जो बॉडी को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने की ज़रूरत होती है. वो सारे चेंजेस कौन लाते हैं? ये सभी हार्मोन्स लाते हैं. और तीसरा है फ्लाइट, मीन्स अगर कोई ऐसा चीज़ आप देख के घबरा गए तो उस समय आपके बॉडी को उस सिचुएशन से डील करने के लिए भी कोई बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो वो चेंजेस कौन लाते हैं? यही हार्मोन लाते हैं. तो इसीलिए इन हार्मोन्स को हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं. ओके, फाइट, फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन. अब बात करते हैं बॉडी में इन हार्मोन से कौन कौन से चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस ये करते हैं जिससे बॉडी जो है प्रिपेयर होती है इन तीनों सिचुएशन के लिए. और एक चीज़ और बता दें कि इन हार्मोन्स को हम अदर वर्ड में इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं. These hormones are also known as emergency hormone. Means ये बॉडी में जब इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, ब्लड में, और बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू फेस द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी. इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करने. अब बात करते हैं कौन कौन से चेंजेस इनकी वजह से होते हैं बॉडी में, जो है कौन कौन से चेंजेस होंगे. तो इसमें चेंजेस क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो है ये चेंजेस लाते हैं, सच एज अलर्टनेस को जो है बढ़ाते हैं. चेंजेस ड्यू टू दीज हार्मोन. सो कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो अलर्टनेस, ये बॉडी को अलर्ट करने का काम करते हैं. इसके अलावा जो है डायलेशन,
पिप्यूलरी डायलेशन। ऐसी सिचुएशन में पिप्यूलरी डायलेशन होता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अगर कोई डरावना चीज़ आप देख गए या फिर गुस्से में आ गए तो आंखें क्या होती है, बड़ी बड़ी हो जाती है, मीन्स पिप्यूलरी डायलेशन हो जाता है। उसके अलावा जो है जो आपका होता है सिम्टम और चेंजेस दिस द पिलोइरेक्शन। Piloerection is another change which is occur during the secretion or when these hormones secrete in our body. So piloerection means जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे जो हेयर्स स्किन पे जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जैसे आप कोई चीज़ देखकर डर जाते हैं तो आप देखे होंगे कि बॉडी के स्किन के जो हेयर है वो इरेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो है बॉडी में हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट जो है इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो ब्लड का सप्लाई आपकी बॉडी में बहुत तेजी से होगा और ऑक्सीजन का सप्लाई जो है उसकी वजह से तेज हो जाएगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई तेज होगी तो बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन तेज होगा, और एनर्जी जब तेज बनेगा तो आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर होगी, आप एनर्जेटिक ज़्यादा हो जाएंगे और आप गुस्से में लड़ाई करेंगे तो आप आसानी से सामने वाले को हरा देंगे, या अगर भागना चाहेंगे तो बहुत तेज़ी से भागेंगे क्योंकि आपके पास एनर्जी बढ़ गई है। उसके अलावा जो है एक चीज़ और होता है इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। तो ऑक्सीजन जो है बॉडी में ब्लड में कम बढ़ेगा, केवल ब्लड के तेज सप्लाई से नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ साथ आपका रेस्पिरेशन रेट भी बड़ा होना चाहिए। मतलब जब आप सांस तेजी से लेंगे तब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ेगा। और एक चीज़ और होता है कि जितने भी ब्लड के सप्लाई होते हैं वो का स्केलेटल मसल की तरफ हो जाते हैं ज़्यादातर। आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन से जो ब्लड का सप्लाई होता है वो विड्रॉल हो जाता है और इस ब्लड को सप्लाई किया जाता है टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल ऑफ आवर बॉडी टू एक्ट द बॉडी इन एफिशिएंट वे टू फेस द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने में ये सारे चेंजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से आप जो है आपको एड्रिनल ग्लैंड की सारे पार्ट्स, सभी तरह के हार्मोन्स के बारे में बता दिया गया और हार्मोन से कौन कौन से ये फंक्शंस होते हैं इसके बारे में आपको बता दिया गया। तो ये थे आपके एड्रिनल ग्लैंड अबाउट